Good morning, students. Today we will discussing about chapter number 2nd, class 10th. The name of chapter is acid, base and salt. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका क्लास 10th का. इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज एसिड, बेस एंड साल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि जितने भी केमिकल्स होते हैं बेसिकली वो 3 ही टाइप्स की प्रॉपर्टी रखते हैं. मे बी दे आर एसिडिक इन नेचर, मे बी दे आर बेसिक इन नेचर और मे बी दे आर न्यूट्रल इन नेचर. ऐसा क्या होता है कि कुछ केमिकल्स एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, कुछ बेसिक बिहेवियर शो कर रहे हैं और कुछ न्यूट्रल बिहेवियर शो कर रहे हैं. तो आपके जो टॉपिक का नाम है, आपके चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एसिड? If I am taking a container which is filled with water, and in this container which is filled with water, if I am adding any unknown chemical, एक ऐसा केमिकल ऐड करता हूं जिसके बारे में अभी मुझे नहीं पता कि वो एसिडिक है या बेसिक है, उसको ऐड कर देता हूं. इफ दिस केमिकल आफ्टर एडिंग इन दिस कंटेनर विच हैविंग वाटर लिबरेट, आयोनाइज्ड और डिसोशिएट. अगेन सुने आप लोग कि इफ आई एम एडिंग ए अननोन केमिकल इन ए कंटेनर विच कंटेनिंग वाटर, if this chemical liberate, ionize or produce H positive ions, that means this unknown chemical having acidic nature. So you can say that acids are those chemical which produces H positive ion, hydronium ion in their aqueous solution. Okay. Similarly, what about base? Similarly, if I am adding any unknown chemical into a container which having water, and if this chemical ionized, dissociated or liberated into OH negative ions. OH negative ions means hydroxyl ion. Then this chemical known as bases. Simply एसिड वो केमिकल है जो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं. सिमिलरली बेस वो केमिकल है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं. वन थिंग आई हैव टू ऐड, इन केस ऑफ एसिड, if I am using HCl and treated this HCl with water, then it will leads to form hydrogen ion plus chlorine ion. And if all these reaction is carried out in a container having water, then this hydrogen ion which are very much reactive in nature get reacted with this water again,
and leads to form S3O negative, which is called hydronium ion. So you can say that any chemical which produces hydrogen ion or hydronium ion in water or aqueous solution known as acid in nature. डेफिनेशन पढ़ते हैं, आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर होगा. Acid, those chemicals which form hydrogen ion in their aqueous solution, and the bases, those chemicals which form hydroxyl ion in their aqueous solution known as bases. एग्जाम्पल हैं एसिड के H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. डेफिनेशन के बाद हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टर्म याद होनी चाहिए विच इज नोन एज कंसंट्रेशन. Concentration. What is concentration? On the basis of this concentration, all the acids and base are further divided into two categories. One is strong acid and second is weak acid. Similarly, in case of base, strong base and weak base. तो ऐसा क्या होता है कि कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में है और कुछ वीक एसिड की कैटेगरी में, और कुछ बेस स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में है और कुछ वीक बेस की कैटेगरी में है. चलिए इसको समझ लेते हैं. मान लीजिए मैं एक कंटेनर ले रहा हूं और इस कंटेनर के अंदर वाटर है. इफ आई एम एडिंग ए एसिड ऑफ 100 मोल, okay, if I am containing a container which having water and adding a acid which having 100 mole, or if this acid after reacting with this water leads to form hydrogen in a very less quantity, moreover about 30%, 20%, 10% hydrogen ions. If an acid produces less amount of hydrogen ions, that means this acid is weak acid. Similarly, if in a container which having water I am adding a acid which having ability or property to produce hydrogen ions but in higher concentration, more concentration, that means this acid is strong acid. Simply you can say that an acid which having property to produce less amount of hydrogen known as weak acid, and the acid which having property to produce hydrogen ions in a higher concentration known as strong acid. Okay. Similarly, in case of base, if I am adding a base in water and this base liberated or produces a very less amount of hydroxyl ion, less amount, then this base is known as weak base. And
if I am adding a base in water and this base produces high concentration of or high amount of hydroxyl ion, then this base is known as strong base. तो आप लोगों को क्लियर हुआ कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं. वीक एसिड वो हैं जो लेस क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं. स्ट्रॉन्ग बेस वो हैं जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं. और वीक बेस वो हैं जो लेस क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं. और ये सब के सब प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ठीक है, तो आइए अब हम डेफिनेशन करते हैं कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड और व्हाट इज स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड्स विच कंप्लीटली डिसोशिएटेड एंड फॉर्म्ड लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन. एक एक एग्जाम्पल आपको बहुत जरूरी है याद रखना. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड. स्ट्रॉन्ग बेस सिमिलरली बिना टाइम वेस्ट के हम करते हैं. विच कंप्लीटली डिसोशिएट एंड फॉर्म्स लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन. फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. इन केस ऑफ वीक एसिड, वीक बेस. वीक एसिड वो हैं जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस तो करेंगे मगर उनकी क्वांटिटी क्या होगी? बहुत लेस होगी. और वीक बेसिस वो हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस तो करेंगे मगर उनकी क्वांटिटी बहुत लेस होगी. हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस जो होंगे वो बहुत कम अमाउंट में होंगे. फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेसिस. आप एसिड और बेस का डिफरेंस याद करते हैं, लर्न करते हैं. एसिड और बेस. एसिड और बेस के डिफरेंस दो टाइप्स के हैं. एक है फिजिकल और दूसरा है केमिकल. फिजिकल डिफरेंस और केमिकल डिफरेंस, जिसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है केमिकल डिफरेंसेस. एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है डिफरेंशिएटेड बिटवीन एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर. ठीक है, तो आज हम पहले फिजिकल वाले को करते हैं. फिजिकल में क्या आता है? टच, स्मेल, टेस्ट. टेस्ट की बात करें तो एसिड का टेस्ट दे आर इन सोरो इन टेस्ट. सोरो इन टेस्ट है, खट्टे होते हैं टेस्ट में. फॉर एग्जाम्पल ये कहां से मिलते हैं? इनका सोर्स क्या है? लेमन विनेगर, जिसको सिरका बोलते हो आप लोग. पिकल्स में भी डालते हैं इसे. ठीक है. बीटर इन टेस्ट, जो बेसिस होते हैं बहुत ज्यादा बीटर इन टेस्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्लेक्ड लाइम. आप लोगों को याद होगा फर्स्ट चैप्टर में स्लेक्ड लाइम मैंने बताया था. स्लेक्ड लाइम क्या होता है? स्लेक्ड लाइम बोलते हैं चूने के पत्थर को, CaO. सोप, बेकिंग सोडा. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके बाद हमें करना है, आज मैं आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं एसिड बेस एंड साल्ट का, ताकि आपको समझ आ जाए. एसिड बेस एंड साल्ट के अंदर मान लीजिए अब हमने पढ़ लिया कि एसिड क्या होते हैं, हमने ये भी पढ़ लिया कि बेस क्या होते हैं. आपके पास मैं अगर दो कंटेनर दे दूं और दोनों में दो केमिकल हो, एक केमिकल का नाम X है और एक का नाम Y है. मैं बोलता हूं कि आप मुझे ये फाइंड आउट करो कि इन दोनों में से एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है. टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ दिस केमिकल, आइदर दे आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर, यू हैव टू बी यूज सम इंडिकेटर. आपको कुछ इंडिकेटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है. इंडिकेटर्स are those chemicals which having property to find out the chemical nature of another chemicals. Indicators वो केमिकल हैं जो किसी और केमिकल की
नेचर को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। तो आप पढ़ेंगे इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर आर दोज केमिकल्स विच हेल्प्स टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ अदर केमिकल। दूसरे केमिकल्स की केमिकल नेचर को फाइंड आउट करने में जो हेल्प करते हैं उन्हें बोलते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर के टाइप्स क्या हैं देख लीजिए। लिटमस, टर्मरिक, मिथाइलिन ऑरेंज एंड वन मोर फिनोफ्थलीन। ये सब इंडिकेटर हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं ये। तो एसिड और बेस के साथ इनकी क्या रिएक्शन है वो आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। थोड़ा ट्रिक है इसमें, मैं आप लोगों को वो ट्रिक बता देता हूं। लिटमस आप लोगों ने लास्ट ईयर में पढ़ा होगा कि लिटमस बनता किससे है? लाइकन की रिएक्शन से बनता है लिटमस। लिटमस एक पेपर है, दो कलर में अवेलेबल है, रेड कलर में और ब्लू कलर में। तो जो लिटमस पेपर है ब्लू कलर का, अगर हम ब्लू कलर के लिटमस को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो रेड कलर में टर्न हो जाता है। तो उसे बोलते हैं जो केमिकल, विच केमिकल टर्न्स द ब्लू कलर ऑफ लिटमस पेपर इनटू रेड, नोन एज एसिड। सिमिलरली those chemicals which turn the red color of litmus paper into blue known as base। ठीक है, आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि एसिड है, एसिड ए है, नेक्स्ट डिजिट क्या है, नेक्स्ट लेटर क्या है, बी। बी, बी फॉर ब्लू, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड कन्वर्ट कर देता है रेड में। और बेस के केस में ट्रिपल बी, 3B का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 3B मीन्स बेस, बिटर, ब्लू। बेस बिटर टेस्ट के होते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट कर देते हैं। टर्मरिक इंडिकेटर है, एसिड के साथ रिएक्ट करने पे टर्मरिक नो चेंज इन कलर, कोई चेंज शो नहीं करता। टर्मरिक बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। फिनोफ्थलीन होता क्या है? फिनोफ्थलीन एक कलरलेस सोल्यूशन है, बिल्कुल कलरलेस सोल्यूशन है। फिनोफ्थलीन को जब रिएक्ट करते हो आप एसिड के साथ तो ये नो कलर चेंज शो करता है, किसी भी तरह का कोई कलर चेंज नहीं होता, एज इट इज रहता है। बट जैसे ही फिनोफ्थलीन किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पिंक कलर में। ओके, मिथाइलिन रेड, मिथाइलिन रेड, मिथाइलिन रेड क्या करता है? मिथाइलिन रेड, जो मिथाइलिन ऑरेंज है, सॉरी मिथाइलिन ऑरेंज जो इंडिकेटर है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन रिएक्टिंग विद एसिड। जब आप मिथाइलिन ऑरेंज को रिएक्ट करते हो एसिड के साथ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड कलर में। सिमिलरली मिथाइलिन ऑरेंज जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? येलो कलर में। इसका एक ट्रिक है वो देख लीजिए, आप याद कर लीजिए कि आप लोगों को पता है कि एप्पल का कलर क्या होता है? रेड होता है, और बनाना का कलर क्या होता है? येलो होता है। तो बस ये इसकी ट्रिक है कि माई एप्पल इज रेड एंड बनाना इज येलो। माई फॉर मिथाइलिन ऑरेंज, एप्पल ए एसिड, माई एप्पल इज रेड, एसिड को किस में कन्वर्ट करता है? ये रेड कलर में, और बेस को किस में कन्वर्ट कर देता है? येलो में। तो इस तरह के निमोनिक्स आपको याद रखने पड़ते हैं बहुत सारे साइंस के अंदर, ट्रिक्स याद रखनी पड़ती हैं। ऑर्डर की बात करते हैं। यहां तक आप इंडिकेटर पढ़ रहे हैं जो वो है केमिकल इंडिकेटर। अभी तक आपने जितने इंडिकेटर पढ़े हैं ये केमिकल इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब जिस इंडिकेटर के बारे में आप पढ़े हुए उसका नाम है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर हैं जिसमें आप किसी भी चीज को डिटेक्ट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंसेस। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर आप लोगों ने पढ़े होंगे, नोज, ईयर, आई, टच, स्मेल के थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है? वेनिला एक्सट्रैक्ट और अनियन एक्सट्रैक्ट।
आप क्या करते हैं इस केस में, वेनिला का एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं और ऑनियन का एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं। आप सबको पता है कि वेनिला एक्सट्रैक्ट की भी कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है और ऑनियन एक्सट्रैक्ट का भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। अब आपने क्या किया, वेनिला एक्सट्रैक्ट ले लिया और ऑनियन एक्सट्रैक्ट लिया, इसके अंदर एक अननोन केमिकल को ऐड किया। आपको नहीं पता ये अननोन केमिकल एसिड है या बेस है। आपने अननोन केमिकल को ऐड किया इसके अंदर, तो वेनिला और अनियन एक्सट्रैक्ट का एक डिस्टिंक्ट स्पेशल स्मेल है। बाय द एडिशन ऑफ दिस अननोन केमिकल, दिस स्पेशल स्मेल गेट चेंजेस। Now you can find out this chemical whether it is base or whether it is acid। तो होता क्या है कि आप जब वेनिला एक्सट्रैक्ट और ऑनियन एक्सट्रैक्ट के अंदर एसिड और बेस में को ऐड करते हो, द स्मेल ऑफ दीज टू इंडिकेटर कैन बी डिटेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ओनली, नॉट बेस। तो इस तरह की जो वेनिला एक्सट्रैक्ट है या ओनियन एक्सट्रैक्ट है, इनकी स्मेल को आप सिर्फ एसिड की प्रेजेंस में शो कर सकते हो। जैसे ही आप इसके अंदर बेस डालते हो, जो इनकी डिस्टिंक्ट स्मेल है वो डिसअपियर हो जाती है। तो आपको फाइंड आउट हो जाता है जो आपने ऐड किया है वो बेसिक इन नेचर का है, मगर उनकी अगर ऑर्डर जो उनका स्मेल है अगर वो एज इट इज रहता है तो आपको फाइंड आउट हो जाता है आपने उसके अंदर एसिड ऐड किया। तो ठीक है, अभी तक तो आप लोगों ने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि एसिड क्या है, बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक बेस क्या है, और कुछ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ये तो बात हुई नॉर्मल। अब हम अगर बात करते हैं कि आप लोगों को, मान लीजिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना जा रहा हूं जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? ये एक स्पेशल काइंड का इंडिकेटर है जो दूसरे इंडिकेटर से इफेक्टिव प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलके किससे बनता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द मिक्सचर of 2 or more other indicators। ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर है 2 और मोर अदर इंडिकेटर्स का। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है पीएच पेपर। पीएच पेपर, पीएच पेपर को आप एज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं। अब इसका क्या यूज है? आप कहेंगे कि भाई हमें पहले ही एसिड और बेस तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं लिटमस से भी, टर्मरिक से भी, फिनोफ्थलीन से, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम क्यों यूज करते हैं? तो उसका आंसर ये है कि मैं आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल इंडिकेटर को समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने लास्ट ईयर में एक स्केल किया होगा, पढ़ा होगा, पीएच स्केल। व्हाट इज पीएच स्केल? पीएच स्केल क्या होता है कि मान लीजिए मैं आपको ये स्केल बना देता हूं, ठीक है, 0 से लेके 14, मिड में 7 है। आपको पता है जो केमिकल पीएच 7 शो करते हैं दे आर न्यूट्रल इन नेचर, एंड 0 to 7 इज एसिडिक रेंज, एंड 7 to 14 is a basic range. This 0 to 7 range which showing acidic property is just due to the presence of hydrogen ion, and 7 to 14 is due to the presence of hydroxyl ion. Okay, मान लीजिए मैं आपको दो केमिकल देता हूं और ये भी बोल देता हूं कि दोनों ही एसिडिक हैं।
मगर आपको पता होना चाहिए 0 से 7 के बीच 1 2 3 4 5 6 7 अलग अलग रेंज है, ये अलग अलग स्ट्रेंथ है। आप जितना 0 से 7 की तरफ जा रहे हैं, आप जितना 0 से 7 की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन उतनी क्या होती जा रही है, लेस होती जा रही है। यानी कि आपकी एसिडिक रेंज लेस होती जा रही है। और जितना आप 7 to 14 की तरफ जा रहे हैं, उतना आपका केमिकल बेसिक होता जा रहा है, उसकी कंसंट्रेशन बेसिक होती जा रही है, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैं आपको 2 कंटेनर देता हूं और 2 कंटेनर्स के बीच एसिड ऐड कर देता हूं, तो हाउ कुड यू फाइंड आउट दिस एसिड इज वीक एसिड और दिस एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड? To find out the concentration of hydrogen ion in the container, we have to be use pH paper. लिटमस पेपर से तो हमें सिर्फ ये पता चलता है कि केमिकल एसिड है या बेस है, मगर पीएच पेपर से हमें पता चलता है वो कितना एसिडिक है, कि उसकी रेंज 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, या वो कितना बेसिक है, कि वो 9 है, 8 है, 10 है, 11 है, किस रेंज का बेस है। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन वी हैव टू बी यूज पीएच पेपर. This pH paper, how it works? If you are using 2 containers, adding acid of different strength and putting this pH paper, this pH paper on the basis of the concentration of hydrogen ion, which may be less or high in both the container, showing distinct color. तो आप क्या करेंगे कि इस पीएच पेपर के ऊपर जो कलर आया है उसको आप स्टैंडर्ड पीएच पेपर के कलर से मैच करेंगे। ठीक है, इस पीएच पेपर का जो कलर आया उसको आप स्टैंडर्ड पीएच पेपर से मैच करेंगे, और ये स्टैंडर्ड पीएच का पेपर 6 7 8 9 11 12 13 14 इस पीएच पेपर की रेंज जिस बैंड से मैच कर जाएगी, आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो केमिकल था 4 पीएच की रेंज वाला है या 6 पीएच की रेंज वाला है। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर. Universal indicator, mixture of many indicator which show different color in different concentration of hydrogen ion. They not help to find out the nature, यानी कि ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आपका केमिकल एसिड है या बेस है, but also find out the concentration of acid और बेस, यानी कि वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है. पीएच पेपर, आपको पता है कि पीएच वर्ड, द वर्ड पीएच इज derived from the word potens, which is a German word, and the meaning of potens is strength. Or in case of acid and base, you are dealing with the concentration of hydrogen ion. Okay, hope so आप लोगों को समझ आ रहा होगा अभी तक जितना मैंने बताया आपको. पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. पीएच स्केल क्या होता है? एक स्केल है 0 to 14 तक जिसकी रेंज है, 7 जिसका सेंटर है. जो भी केमिकल 7 पीएच रखते हैं वो न्यूट्रल होते हैं नेचर, जो 0 से 7 के बीच आ रहे हैं वो एसिडिक इन नेचर हैं, जो 7 से 14 की तरफ आ रहे हैं वो बेसिक इन नेचर हैं. जो एसिडिक हैं उनके अंदर कौन से एजेंट की, कौन से आयंस की प्रेजेंस होती है? हाइड्रोजन आयन की. और जो बेसिक हैं उनके अंदर किसकी प्रेजेंस होती है? हाइड्रोक्सिल आयन की. ओके, आप लोग ये सब नोट्स मैं आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा,
आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाएं। और ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे दिया है। कल हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द एसिड एंड बेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। तो आप मिस मत करें और प्रॉपरली नोट्स बनाते रहें। थैंक यू।